גלנדי ועדיתן נפלאות מתורתך. Hello and welcome back to another Torah Tuesday. Today we're in Exodus chapter 2, and I want to talk to you about the name Moses. One of the curious things about chapter 2 is that for the first 9 verses, we are hearing the story of Moses, but we never hear his name. He is nameless, his mother is nameless, and his sister are nameless. नमस्कार। तोरा मंगलवार के एक और सेशन में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हम निर्गमन 2 में हैं और निर्गमन 2 में से हम मूसा नाम के बारे में आज सीखने वाले, मैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। निर्गमन अध्याय 2 की एक जो विशेष बात है वह यह है कि पहले 9 पदों में हम मूसा की कहानी सुनते हैं, परंतु कहीं पर भी उसका नाम नहीं पढ़ते हैं। वह जैसे कि बेनाम है, उसकी माता भी बेनाम है और उसकी बहन भी बेनाम है। It's almost as if the narrator is trying to say, shh, don't tell. He's trying to protect their identities so that they're not discovered by Pharaoh and killed. But in verse 10, the daughter of Pharaoh takes Moses as her own son, and at that moment she names him. So it's almost as though Moses doesn't exist before then. From the perspective of the daughter of Pharaoh, Moses' life began the moment she found him in the river. यहाँ पर ऐसा चित्र दिखाया गया है जैसे कि कथावाचक ये कह रहा हो कि शांत, आवाज मत करो, नाम मत लो। वह जैसे कि उनकी पहचान छुपा कर रखना चाहता है कि कहीं फिरौन उन्हें ढूंढ कर उन्हें मार ना डाले। परंतु पद 10 में हम पाते हैं कि फिरौन की बेटी मूसा को अपना बेटा कर लेती है और उसी क्षण उसे नाम भी देती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मूसा उस क्षण से पहले था ही नहीं। फिरौन की बेटी के नजरिए से मूसा का अस्तित्व, मूसा का जीवन उसी क्षण आरंभ हुआ जिस क्षण उसने नदी में से बाहर निकाला। She names him as if that's his birth story, and she names him Moses, saying, I drew him out of the water. Now, what's the connection there? The name Moses in Hebrew is Moshe, which sounds like the Hebrew word for drawing out, Masha. One who draws out is Moshe. Actually, it says she named him Moses, saying, I drew him out of the water. वह उसे इस प्रकार नाम देती है जैसे कि यह उसकी जन्म की ही कहानी हो। उसे मूसा नाम दिया जाता है, जिसका यह कहकर कि मैंने उसे पानी में से बाहर निकाला। अब यहाँ पर क्या संबंध हम पाते हैं? मूसा नाम जो हिब्रू में मोशे होता है, उसका अर्थ है बाहर निकालना। और एक और वैसा ही शब्द है जिसका नाम है माशा। माशा का मतलब है, जो मोशे जैसा ही सुनाई पड़ता है, उसका मतलब है कि बाहर निकाला जाना। दरअसल में वह कहती है कि उसने मूसा नाम रखा है यह कहकर कि मैंने उसे पानी में से बाहर निकाला है। But either her Hebrew is not real great, or she is speaking prophetically of his future role, because Moses, in fact, is the one who will draw the people of Israel out of the water through the Red Sea and into freedom. It's curious that an Egyptian woman would be giving a Hebrew name to this Hebrew child. But in fact, the name works in both Hebrew and Egyptian. So in Hebrew, it means drawn out or one who draws out, whereas in Egyptian, Moshe means son of. We can see this element, Moses, in many Egyptian names, Tutmoses and many others, and it means son of. परंतु यहाँ पर शायद उसकी हिब्रू भाषा उतनी अच्छी नहीं थी, या फिर वह एक भविष्य वक्ता की रीति से बात कर रही है मूसा के भविष्य की एक भूमिका के विषय में, क्योंकि मूसा ही है जो दरअसल में इजराइल के लोगों को लाल समुद्र में से निकालकर स्वतंत्रता की ओर लेके जाता है। और यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक मिस्री स्त्री हिब्रू बालक को हिब्रू नाम देती है, परंतु यह नाम मिस्री और हिब्रू दोनों भाषा में चलता है। हिब्रू में इसका अर्थ बाहर निकाला गया या जो बाहर निकाला गया है, और मिस्री भाषा में इस नाम का अर्थ का बेटा होता है, का बेटा। हम यह लाक्षणिकता को अन्य मिस्री नामों में भी पाते हैं। टटमोस और अनेक ऐसों का मतलब का बेटा होता है कि सो एंड सो का बेटा।
Usually it's followed by the name of the deity to whom that person belongs. In this case, it's ambiguous because it's son of, and then it doesn't tell us who he's the son of. And so there's almost a question mark in the narrative as to where Moses really belongs. Does he belong with the Hebrews, worshiping Yahweh, or does he belong with the daughter of Pharaoh, worshiping Egyptian gods? And that question mark is going to hang over the rest of the chapter as Moses himself is wrestling with his own identity and trying to figure out who he is. आमतौर पर मोशे जो शब्द है जिसका मिस्री अर्थ है, उसके नाम के बाद एक या देवी या देवता का नाम आता है जिसका वह हो। इस मूसा के विषय में धुंधला है, हमारे लिए सब कुछ धुंधला है यहाँ पर, क्योंकि का बेटा तो है पर किसका बेटा है यह स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए यह एक प्रश्न है इस पूरी कहानी में कि मूसा सचमुच में किसका है। क्या मूसा हिब्रुओं का है यहोवा की आराधना करते हुए, या फिर क्या वह भी फिरौन की बेटी की तरह जो मिस्री देवों की उपासना करती है, क्या उनका है। और यह प्रश्न इस पूरे अध्याय में हमारे सामने आता ही रहेगा, क्योंकि मूसा स्वयं भी अपनी पहचान खोजने में संघर्ष कर रहा है। Now, one thing to note about names and naming in the Bible, when a child is named, there's often a sentence attached to it, but we shouldn't understand that as a strict origin or etymology of the word. Usually there's some sort of playful sound patterning going on between the sentence that they say and the name that they've said. But we should not understand it as this is what the name means. अब बाइबल में यह समझना आवश्यक है कि जब भी नाम या फिर नाम दिए जाना होता है किसी बालक के लिए, तो उसके नाम के पीछे एक वाक्य जुड़ा हुआ आता है। परंतु हमें यह समझना है कि यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि वह उस नाम का मतलब ही हो, या फिर उस अदब के उपयोग, उस शब्द के उपयोग की शुरुआत का मतलब हो। साधारण तौर में जो नाम लिया जाता है और जो वाक्य बोला जाता है उनमें कोई संबंध होता तो है, परंतु ऐसा नहीं है कि उस वाक्य उस नाम का अर्थ ही हो। The name sounds like that other word that they're saying. So in this case, Moses' name sounds like drawn out or one who draws out. And it also sounds like the Egyptian for son of. In Isaiah chapter 63, verse 11, we have a really fascinating reference to the days of Moses using his name as a verb. यहाँ पर जो नाम है वो एक दूसरे शब्द के समान भी सुनाई पड़ता है। तो इस मामले में मूसा का नाम बाहर निकाला गया या फिर जो बाहर निकलता है जैसे भी सुनाई देता है, और उसके साथ साथ का बेटा उसके जैसे भी सुनाई देता है। यशाया अध्याय 63 के पद 11 में हमारे लिए मूसा के दिनों का वर्णन किया गया है, जो बहुत ही दिलचस्प बात है। उसके नाम को वहां पर एक क्रियापद के तौर पे उपयोग किया गया है। It reads in the NIV, then his people recalled the days of old, the days of Moses and his people. But we could also understand this as, then he recalled the days of old, the one who drew out his people. So instead of Moses and his people, the one who drew out his people. And then in the parallel line, the next line explains the one who brought them through the sea, the shepherd of his flock. And indeed, we do see that Moses is a shepherd of the Israelites as they wander through the wilderness, as they travel through the wilderness. NIV बाइबल का जो भाषांतर है, हम उसमें इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि फिर उसके लोगों ने पुरातन के दिनों को स्मरण किया, वे मूसा के दिन और उसके लोग। परंतु इसे हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि फिर उसके लोगों ने पुरातन के दिनों का स्मरण किया, वो जिसने अपने लोगों को बाहर निकाला। और फिर इसी समकक्ष नजरिए से अगला वाक्य समझ में आता है हमें। वहां पर लिखा है कि उसने जिन्होंने इन लोगों को समुद्र से लेकर आया, इन भेड़ों का चरवाहा। और सचमुच हम देखते हैं कि मूसा इजराइलियों का चरवाहा है। जब वे उन्हें उस जंगल में भटकते रहते हैं तब वो उन्हें अगुवाई करता है। But back to the naming event of Moses, there's one other aspect of this that I just want to point out to you that I find really fascinating. The daughter of Pharaoh is taking a great risk by rescuing this Hebrew child who was supposed to be drowned.
and by taking him in as her own son. But not only does she put herself at risk, she memorializes her audacity by naming the child Moses. परंतु मूसा के नामकरण के समय में हम जब वापस आते हैं, इसका एक और पहलू है जो मैं आपके सामने सिर्फ रखना चाहता हूं। मुझे स्वयं को यह बहुत ही दिलचस्प लगता है। फिरौन की बेटी एक बहुत ही बड़ा साहस कर रही है, उस बालक को अपना खुद का बेटा करके। परंतु हम समझते हैं कि वह केवल साहस ही नहीं करती, परंतु वह अपने इस साहस को यादगार बना देती है उसी क्षण मूसा को नाम देकर। Every time she or anyone else says his name, she will remember where he came from, that she drew him out of the river in rebellion against her father's edict. हर बार फिरौन की बेटी या फिर कोई भी मूसा को जब बुलाएगा उसके नाम से, तो उन्हें याद आएगा कि वह कहां से आया था, कि फिरौन की बेटी ने उसे बाहर निकाला था उस नदी में से, उसके खुद के पिता के ऐलान के विरुद्ध में जाकर। Anytime someone with privilege sides with the oppressed, they risk personal loss. And that is absolutely true in the case of the daughter of Pharaoh. She acts with courage and audacity to defy her father. And we see it, and we should hear that audacity every time we hear Moses' name. कभी भी कोई भी विशेषाधिकारी व्यक्ति कोई कुचले हुए व्यक्ति की तरफ लेता है, तो वह यह उसमें खुद का व्यक्तिगत नुकसान उठाकर ही करता है। और यह बात संपूर्ण रीति से फिरौन की बेटी के विषय में सच थी। फिरौन की बेटी साहस के कार्य करती है और दुष्टता के कार्य करती है, और भले ही अपना खुद का नुकसान क्यों ना हो, भले ही अपने खुद के पिता के विरुद्ध में भी क्यों ना जाना पड़े, परंतु वो ये करती है। जब भी हम मूसा का नाम सुनेंगे, तब हमें ये बात याद आनी चाहिए। As the story unfolds, we'll continue to wrestle with the question of Moses' identity. Join me again next week for another Torah Tuesday. आगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से मूसा की पहचान का जो संघर्ष है वो हमारे सामने रखा गया है। अगले मंगलवार को भी आप मेरे साथ जुड़िएगा, जिससे कि हम आगे के विषय में हम आगे बढ़ पाएंगे और मूसा की पहचान के बारे में हम थोड़ा और समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।